بہاولپور میں خسرہ کی وبا آؤٹ آف کنٹرول 24 گھنٹے میں خسرہ کے باعث مزید 2 بچے جان کی بازی ہار گئے۔ شہر کے مختلف اسپتالوں میں خسرہ کے شکار 50 بچے زیر علاج ہیں۔ بہاولپور میں خسرہ کی وبا شدت اختیار کر گئی۔ 24 گھنٹے میں خسرہ کے باعث مزید 2 بچے لقمہ اجل بن گئے۔ شہر کے مختلف اسپتالوں میں خسرہ کے شکار 50 بچے 30 سرساد عباسی اسپتال میں 17 بچے داخل ہیں۔ کہ پچھلے جب کورونا کے ٹائم میں لوگوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی اس حساب سے جیسے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ اس کی ویکسینیشن ہوتی ہے 9 منتھ آف ایج پہ اور پھر 18 منتھ پہ ہوتی ہے، اور ویسے بھی ہماری قوم خیر سے جن معاملات میں ہمیں اچھے ہونا چاہیے، یعنی جو ویکسینیشن ہے اسپیشلی، تو اس طرح لوگ جو ہے نا پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ ٹیمیں تو ہماری پہنچتی رہتی ہیں، جگہ جگہ کوشش کرتی رہتی ہے، ایفرٹ کرتی رہتی ہے، لیکن لوگ اس طرح رسپانس نہیں کرتے، اس طرح کوآپریٹ نہیں کرتے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ خسرہ کی سب سے بڑی وجہ والدین کا بچوں کو ویکسین نہ لگوانا اور متاثرہ بچوں کو بر وقت ہسپتال نہ لانا ہے۔ دیہاتوں میں خسرہ کے شکار بچوں کو آج بھی روایتی طریقوں سے گھروں میں بند رکھا جاتا ہے۔ بچے کی حالت جب بگڑ جاتی ہے تب ہسپتال منتقل کیا جاتا ہے۔ تشویشناک حالت میں بچے کو ہسپتال میں بچانا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب خسرہ نکل آتا ہے تو ایک میتھ ہے، وہ خسرے والے پیشنٹ کو اوری سرائکی میں کہتے ہیں، اور وہ نا بچے کو گھر میں رکھتے ہیں، پنکھا نہیں چلاتے، نہانے نہیں دیتے بچے کو، میڈیسن نہیں، ڈاکٹرز کے پاس نہیں آتے۔ تو اس طرح جب وہ کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے، پھر جب کوئی بس میں چیز نہیں رہتی تو پھر وہ ہاسپٹل آ جاتے ہیں۔ اور خسرہ ایک اتنی گندی کنٹیجیس ڈیزیز ہے کہ اس میں بچے کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے۔ طبی ماہرین نے والدین کو ہدایت کی ہے کہ متاثرہ بچوں کو بر وقت ہسپتال لائیں اور ویکسین بھی کروائیں۔ کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ طاہر جویا، روہی، بہاولپور۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں پاور لوم انڈسٹری زب و حالی کا شکار۔ گزشتہ چند سالوں میں 30,000 سے زائد پاور لومز بند۔ پاور لوم ایسوسی ایشن نے نئے مالی سالی بجٹ کے میں بجلی کی قیمت کم کرنے کا مطالبہ کر دیا، جبکہ صدر چیمبر آف کامرس نے حالیہ بجٹ کو مشکل بجٹ قرار دیا ہے۔ پنجاب میں پاور لوم انڈسٹری زب و حالی کا شکار۔ بجلی کے مہنگے بلوں سے تنگ آ کر تاجر پاور لومز بیچنے پر مجبور ہیں۔ صدر پاور لوم ایسوسی ایشن خالد قندیل انصاری کے پرائم نیوز نائٹ میں دکھڑا سناتے ہوئے کہنا تھا کہ 30,000 سے زائد لومیں بند ہو چکی ہیں۔ مہنگی بجلی کی وجہ سے کاروبار کرنا مشکل ہو گیا۔ دیکھیں، وہ جو اس وقت ہماری پوزیشن ہے نا، وہ بجلی کے ریٹس کی وجہ سے، ٹیکسز کی وجہ سے، اور اسی طرح گیس کے ریٹس کی وجہ سے، اور دیگر جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے اتنا پریشان ہے کہ ہماری انڈسٹری اس وقت بالکل بہت کرائسس کا شکار ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارا جو مزدور ہے وہ بے روزگار ہو رہا ہے۔ ہمارا جو چھوٹا پاور لوم انڈسٹری کا مالک ہے وہ اس وقت بے روزگار ہے۔ اس وقت تقریباً 50% ہماری انڈسٹری بند ہو چکی ہے۔ پاور لوم پر کام کرنے والے ایک مزدور نے کہا کہ وہ 20 سال سے کپڑا بنانے کا کام کر رہا ہے، مگر اب حالات دن بدن مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ 5 سال سے تو بالکل ہی ختم ہو گیا آمدنی کا سلسلہ۔ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، مہنگائی زیادہ بچوں کی فیس نہیں دے سکتے، گھر کا بل نہیں ادا کر سکتے، بجلی اتنی مہنگی ہے نا، گھر کا بل ادا کرنا مشکل ہے۔ حالیہ بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی شکیل انجم کا کہنا تھا کہ نیا بجٹ الفاظ کے گورکھ دھندے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بجٹ الفاظ کا گورکھ دھندا ہوگا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جس طرح سے ماضی میں حکومتیں بجٹ پیش کرتی ہیں، اعداد و شمار کو کبھی اوپر کر دیتی ہیں، کبھی نیچے کر دیتی ہیں، اس سے زیادہ مجھے بجٹ میں کوئی نئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ صدر چیمبر آف کامرس میاں راشد اقبال نے پروگرام نیوز نائٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ مالی سال 2024-25 کا بجٹ IMF کا بجٹ ہوگا، اس میں عوام کو ریلیف ملنا مشکل ہوگا۔ حکومت اپنے اخراجات کم نہیں کرے گی تو بہتری کی کوئی گنجائش نہیں۔ بجٹ تو وہی پیش کیا جائے گا جو IMF کہے گی۔ ہم IMF کے پروگرام میں ہیں اور اگلے مزید 3-4 سال بھی ہم IMF کے پروگرام میں رہیں گے، تو ہمارا بجٹ اتنے سال تو وہیں سے ہی بن کے آئے گا۔ ہم نے تو صرف اناؤنس کرنا ہے۔ شہریوں نے حالیہ بجٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اپیل کی کہ حکومت انہیں کم از کم بجلی کے بلوں میں ریلیف ضرور دے۔ نیوز نائٹ ٹیم کے ہمراہ بلال نیازی، روہی، ملتان۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ختم نہیں ہونے دیں گے۔ سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم میدان میں آگے کہتے ہیں کہ بجٹ کی منظوری کو ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کی فعالیت کے ساتھ مشروط کیا جائے۔ ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے اختیارات کم کرنے کا معاملہ شدت اختیار کر گیا۔ سینئر نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خواجہ رضوان عالم بھی میدان میں آ گئے۔ کہتے ہیں سیکریٹریٹ کے خاتمے کے خلاف ہم سب آواز اٹھائیں گے۔ شہریوں اور سول سوسائٹی کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ترقیاتی فنڈ بھی انہیں مہیا نہیں تھے جو سینٹرل پنجاب کو تھے، لیکن یہاں ان کے 4 ارب روپے سے زیادہ لاگت سے سیکریٹریٹ تعمیر کرایا گیا ان کی ٹیکسوں سے۔ آج انہیں جو ہے نا پھر دوبارہ جو ہے وہ جو سیکریٹریٹ جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے دوبارہ لاہور،
फिर एक मरतबा यहाँ के इलाकों को, इन लोगों को, यहाँ के बासियों को तख्ते लाहौर के जो है वो उनके नजर किया जा रहा है। ख्वाजा रिजवान आलम का कहना था कि बजट के मंजूरी को साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट की फालियत के साथ मशरूत किया जाए। उन्होंने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और गिलानी खानदान ने हमेशा अलहदा सूबे के लिए आवाज उठाई है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ गिलानी पिछले दिनों मुल्तान दौरे पर आए थे, उनके इल्म में लाया गया कि यहाँ सेक्रेटेरिएट जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है, तो उन्होंने वहाँ सिर्फ ना एहतजाज की सदा बुलंद की, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं हर फोरम पर इसका एहतजाज करूंगा और भरपूर दिफा करूंगा सियासी अवाम के मफाद का, कि भाई यहाँ से सेक्रेटेरिएट मुंतकिल ना किया जाए बल्कि सूबे क़याम के लिए अमली इक़दाम उठाए जाएं। सीनियर नायब सदर का कहना था कि साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट को आहिस्ता आहिस्ता समेटा जा रहा है। स्पेशल सेक्रेटरीज के इख्तियारात सिर्फ पोस्टमैन के हैं। साउथ पंजाब के बासियों को फिर तख्ते लाहौर का सफर करना पड़ेगा। कैमरामैन आमिर शाह के साथ महार इमरान नवाज, मुल्तान। तुरंडा मोहम्मद पनाह में गर्मी बढ़ते ही बर्फ का रेट भी बढ़ गया। शहर और मुज़ाफ़ाती इलाकों में बर्फ 40 से 50 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब, शहरी लुटने पर मजबूर। तुरंडा मोहम्मद पनाह में गर्मी बढ़ते ही बर्फ महंगी हो गई। एक माह कबल 10 से 20 रुपए में मिलने वाली बर्फ 40 से 50 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर आम से गायब हो गई। शहरी कहते हैं बर्फ महंगी होने की वजह से वो ठंडे पानी की सहूलत से महरूम है। दुकानदार कहते हैं फैक्ट्री मालकान ने बर्फ महंगी कर दी। गुज़श्ता साल 600 से 700 रुपए में मिलने वाले बुलाक अब 1100 से 1200 रुपए में मिल रहा है। शहरियों ने हुकाम बाला से खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाने और प्राइस कंट्रोल कमेटियां फाल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ गुलाम अली रोही, तुरंडा मोहम्मद पनाह। बस्ती मलूक में शुजाबाद रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार। सड़क पर गड्ढे पड़ने से गाड़ियां, खटारा और हादसात मामूल बन गए। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। कारोबार भी मुतासिर, शहरियों की सफरी मुश्किलात में इजाफा हो गया। अड्डा लाट चौक शुजाबाद रोड 10 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ने से हादसात मामूल और गाड़ियां खटारा बन गई। रोड पर गंदगी के बायस शहरी अमराज में मुब्तला होने लगे। ये रोड तकरीबन 10 से 12 साल से अपना टूट फूट का शिकार है और यहाँ पे हादसात मामूल बन गए हैं। मेरी आला हुकाम से अपील है कि इस रोड को बनवाया जाए जल्दी जल्दी। इलाका मकीनों का कहना है कि रोड पर कई रोज तक बारिश का पानी जमा रहता है। शहरी दमा और दीगर बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जबकि कारोबार भी ठप होकर रह गए। हम यहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट वगैरह लेने आते हैं। यहाँ रोड खराब की वजह से काफी पानी खड़ा रहता है और मच्छर और मक्खियों का बहुत ज्यादा यहाँ समात है। तो हम अपील करते हैं कि ये रोड को बनाया जाए जल्द अज जल्द, ताकि यहाँ के आवाम को फायदा हो सके। शहरियों ने 10 साल से खराब रोड जल्द तमीर करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के हमरा मिर्जा जलील, रोही न्यूज, बस्ती मल्लू। कुंदिया म्यूनिसिपल कमेटी की नाअहली। मोहल्ला नक्शबंदी में निकासी आब का निजाम दरहम बरहम। सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से गटरों का पानी गली में जमा। अहले मोहल्ला इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गए। कुंदिया के नक्शबंदी मोहल्ला की सीवरेज लाइन मुकम्मल बंद होगी। गटरों का पानी गली में जमा होने से शहरी घरों में महसूर होकर जनाजा गुजारना भी मुश्किल हो गया। ताफुन के बायस सांस लेना महार। अहले इलाका इंतजामिया के खिलाफ सिरापा एहतजाज बन गया। इलाका मकीनों का कहना है सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से गली से नहीं गुजर सकते। इमरजेंसी की सूरत में एम्बुलेंस भी नहीं आ सकती। कई बार दरख्वास्तें दी लेकिन सुनवाई नहीं हुई। डिप्टी कमिश्नर मियां वाली फौरी नोटिस लें। दिल्ली का जो हमारा मसला है ना, वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे चलना भी इतना दुश्वार है ना, बड़ी मुश्किल से हम गुजारा कर रहे हैं। तो अभी हमने 10-15 साल से ना तमाम सियासतदानों की, टाउन वालों की, लोकल मेंबरान की, सबकी मिन्नतें की हैं आके एक दफा चक्कर लगा जाए यहाँ से ना, तो फिर वादे करके मुकर जाते हैं। फिर टाउन वालों के पास हमारी कोई 100 दरखास्त पड़ी होगी, बार बार जाते हैं लेकिन कोई पुरसान हाल हमारा नहीं है। गली नक्शबंदी के मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर मियांवाली और असिस्टेंट कमिश्नर पिपला से सीवरेज मसाइल फौरी हल करवाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन टीम के साथ अताउल्ला शाहीन, रोही न्यूज, पिपला। जहांपुर में प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के हवाले से आगाही रैली। दुकानदारों में पंफलेट भी तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है कि 6 जून से खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर जहांपुर ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के हवाले से म्यूनिसिपल कमेटी से ट्रैफिक चौक तक आगाही रैली निकाली। इस मौके पर दुकानदारों और शहरियों में पंफलेट भी तकसीम किए गए। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि प्लास्टिक बैग्स माहौल के दुश्मन है। रैली का मकसद दुकानदारों और शहरियों में पाबंदी के हवाले से आगाही देना। 6 जून से खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। हम सबको मालूम है कि प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये माहौल का दुश्मन है, लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी। शॉर्ट टर्म में ये हमारे सीवरेज को ब्लॉक करते हैं और शहर की सीवरेज खराब होती है, और लॉन्ग टर्म में हमारी आने वाली नस्लों के लिए मसला है, क्योंकि ये 100 से 500 साल लेता है डिग्रेड होने में। शहरियों ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी के हुकूमती फैसले को सराहते हुए इस पर सख्ती से अमल दरामद करवाने का मुतालबा कर दिया।
हुकूमत ने जरा फैसला किते छापर ते पाबंदी किते थी बहुत अच्छा फैसला किते इंतजामिया को अप्लाई करें तो बहुत पाबंदी की वने। शहरियों का कहना है कि प्लास्टिक बैग पर पाबंदी का फैसला एहसन इकदाम है, जबानी जमा खर्च की बजाय सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल, रोहित जामपुर। जिले इंतजामिया की गफलत या फिर नाअहली, रुझान में करोड़ों की लागत से तामीर तहसील कॉम्प्लेक्स खंडरात में तब्दील। बाअसर मुकामी लोगों ने कमरे मसमार करके लोहा, सरिया, खिड़कियां, दरवाजे चोरी कर लिए। रुझान में करोड़ों की लागत से तामीर तहसील कॉम्प्लेक्स हुकूमती अदम तवज्जा के बहस खंडरात में तब्दील। 1986 में तामीर होने वाला तहसील कॉम्प्लेक्स हुकूमती बेहिसी पर नोआ कना है और हर गुजरते लम्हे के साथ जमीन बोस हो रहा है। मकामी बाअसर लोग सरकारी इमारतों से खिड़कियां, दरवाजे, रोशनदान और ईंटें तक उखाड़ कर ले जा रहे हैं, जबकि जिलाई और तहसील इंतजामिया को कानो कान खबर तक न हुई। यहाँ की ईंटें तक उठा के ले गए, खिड़कियां, दरवाजे, सरिये उखाड़ के ले जा रहे हैं। मैं हैरान हूँ, डिस्ट्रिक्ट हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिस नहीं लिए जा रहा, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऐसे जराइम पेशा अफराद के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही। ये चंद दिनों बाद अगर आप देखेंगे, ये जो खंडरात आपको नजर आ रहे हैं, इनके निशानात भी आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पर मंजूर किया गया ये मनसूबा हॉस्पिटल के लिए, तो यहाँ पे 100 से ज्यादा कमरे बनाए गए और यहाँ पे करोड़ों रुपए की लागत खर्च हुई। तो यहाँ के गिरदुनवा के लोग, अब आपके सामने है कि यहाँ के गिरदुनवा के लोग इस वक्त मटीरियल, ईंटें उखाड़ के अपने घर ले जा रहे हैं और चोरी करके तमाम मटीरियल ले जा रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब से, तहसील इंतजामिया से, कि इनके खिलाफ सख्त नोटिस लिया जाए। सरकारी असासे की तबाही पर पंजाब हुकूमत और जिले इंतजामिया की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। कैमरा टीम के साथ असलम सागर, रोही, रुझान। मुल्तान के शहरी जराइम पेशा नासिर के निशाने पर एक माह में डकैती और चोरी की 660 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट। शहरी 7 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मालियत के सामान और नकदी से हाथ धो बैठे। मुल्तान में डकैत गैंग्स बेलगाम। गुज़िश्ता माह डकैती और चोरी की 660 से ज्यादा वारदातें रिपोर्ट हुई। एसपी कैंट ताहिर मजीद का कहना था कि क्राइम पर काबू पाने के लिए जराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। मुख्तलिफ गैंग से गिरफ्तारी के बाद माल मसरूका और नकदी बरामद कर ली। यहाँ हमने इसको हर तरफ से क्राइम को कवर करने की कोशिश की है, जिसमें सिर्फ मंथ मई में हमने कोई 10 गैंग्स पकड़े और इसमें जो पर्टिकुलर 3 वारदातें थी, कत्ल और रॉबरी विद मर्डर की, एक शाह शमस में हुई थी, एक मुमताज़ाबाद में, और अभी रिसेंटली जो चहलियत में एक मर्डर हुआ था वो भी ट्रेस हुआ है। तो उसमें वो कत्ल भी ट्रेस हुए हैं और उनके जो मुल्ज़मान थे वो अपने कैफे किरदार तक पहुंच चुके हैं। एक माह के दौरान 180 से ज्यादा मोटरसाइकिल छीने और चोरी किए गए। मोबाइल फोन छीनने और चोरी के 232, जबकि नकदी, जेवरात और दीगर कीमती अशिया छीनने के भी कई वाकयात दर्ज हुए। शहरियों ने पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और जराइम पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद खान बाबर के हमरा हसन मलिक, रोही, मुल्तान। जनूबी पंजाब में जराइम पेशा नासिर बेलगाम, चोरी, डकैती, कत्ल, इक़दाम कत्ल और राहज़नी की वारदातों में इजाफा। जराइम की बढ़ती हुई वारदातों से अवाम परेशान। मुतअद्दिद वारदातों में शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान से महरूम हो गए। कहा कि पुलिस अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। बहावलपुर में जराइम के वाकयात थम न सके। एक माह में कत्ल की 8, इक़दाम कत्ल की 8, मोटरसाइकिल चोरी की 28, डकैती और राहज़नी की 36, जबकि नकद जनी की 70 वारदातें रिपोर्ट हुई। पुलिस ने 385 इश्तिहारी और 90 अदालती मफरूर गिरफ्तार किए। लोकल एंड स्पेशल लॉ के तहत 123 मुकदमात दर्ज हुए। गैर कानूनी असलहे के 92 मुकदमात दर्ज करके असलहा बरामद किया गया। मंशियात के 177 मुकदमात का इंदराज हुआ। मुलजिमान से 41 किलो चर्स, 845 ग्राम आइस, 402 ग्राम से जायद हीरोइन और 5602 लीटर शराब बरामद हुई। मियावाली में कत्लो गारत, चोरी और डकैती की वारदातें आम हो गयीं। एक माह में कत्ल के 10, मोटरसाइकिल चोरी के 49, नकद जनी के 24 और चोरी के 35 मुकदमात दर्ज हुए। गैर कानूनी असलहे के 161 और मंशियात फरोशों के खिलाफ 54 मुकदमात रिपोर्ट हुए। शहरियों का कहना है कि पुलिस 80 लाख रुपए की चोरी की वारदात ट्रेस न कर सकी। पिपला में 32 लाख रुपए की चोरी का सुराग भी न लगाया जा सका। मुजफ्फरगढ़ में भी जराइम की शरह कम न हो सकी। एक माह के दौरान फायरिंग के 66 वाकयात पेश आए। चोरी, डकैती और दीगर जराइम के 125 वाकयात रिपोर्ट हुए। 2 कमसिन बच्चे अगवा और सहाफी समेत 5 अफराद को कत्ल किया गया। घरेलू झगड़े और रंजिश पर 15 अफराद जख्मी हुए। पुलिस ने 100 से ज्यादा जराइम पेशा अफराद को गिरफ्तार किया।
महकमे तालीम रहीम यार खान ने समर कैंप की तैयारियां शुरू कर दी। सरकारी स्कूलों के टीचर्स के लिए तरबियती वर्कशॉप का आगाज 10 जून तक 362 असातिज़ा को बेहतरीन अंदाज में पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रहीम यार खान के सरकारी स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियों के दौरान समर कैंप प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जाएगा, जिसके लिए असातिज़ा की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई है। डिप्टी डीओ जहांजेब आलमगीर ने तरबियती वर्कशॉप का दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि जिले भर में 10 जून से समर कैंप लगाए जाएंगे। इसके लिए 362 असातिज़ा को ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्होंने कहा कि समर कैंप में पढ़ाने वाले असातिज़ा को 8 मास्टर ट्रेनर्स तरबियत दे रहे हैं। समर कैंप में ज़ेर तालीम तलबा तलबात को आला मियार की मुफ्त तालीम दी जाएगी। हुकूमत पंजाब का ये एक इनकलाबी कदम है कि जो बच्चे स्कूल से बाहर हैं, किसी भी हवाले से उनको अगर प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल रही, तो यहाँ 8 हफ्तों का गवर्नमेंट ने एक समर कैंप लर्निंग कैंप के हवाले से यहाँ पे ट्रेनिंग का एहतमाम किया है। 141 टीचर्स हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं। 181 स्कूल्स के अंदर, जिनमें प्राइमरी, एलिमेंट्री, सेकेंडरी स्कूल्स इंक्लूडेड हैं, तो ये सारे जो है वहाँ पे 8 हफ्तों की ट्रेनिंग होगी। 3 बैचेस के अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है FLN की। इनके हमारे पास जो 8 हफ्तों के लिए लर्निंग कैंप्स लग रहे हैं तहसील रहीमिया खान में, तो उनमें जितने हमारे पास 362 टीचर्स हैं, जिसको हम लोगों ने 3 बैचेस के अंदर यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी ही ट्रेनिंग्स इंशाल्लाह होती रहेंगी। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और इंशाल्लाह ट्रेनर भी बहुत अच्छे हैं, इतना अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि भी समझ उसके अच्छे तरीके से आ रही है। 10 जून तक असातिज़ा को बच्चों को बेहतर अंदाज में पढ़ाने के लिए तरबियत दी जाएगी। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान।